Good evening, class. So, class, we are going to discuss collection framework today. We'll start with discussing the need for the collection framework. Okay. So, if I ask you to create a list of students, okay, so the thing which comes to my mind is I am asking you to create a list of student objects. Okay, कि स्टूडेंट के ऑब्जेक्ट्स की आपको क्या बनानी है, एक लिस्ट बनानी है. Okay, so we I want you to create list of student object, that is collect an student object somewhere. So when you want to collect similar type of object, when you want to create similar type of object, you will think of array. And with array, the things comes into your mind is the size of that array, that is going to be fixed. So you are going to ask me, sir, how many students there will be in the list? I will say the different number of elements will available in different lists. So I'll say the maximum can be 500 and the minimum can be 1. Okay. So keeping this in mind, what we can do, keeping this in mind, what we can do, we can create, or you can create an array of size 500. That is the maximum. That is the maximum, because if you have created any array less than 500, then some of the element will going to miss the list. So you will create a list of 500 maximum, and the list I'll supply. The very first list contains 60 student, this next list contains 70, the another list contains 45, and the last list contains 145 student. Okay, so there's no 500 student as of now, but there can be. So by keeping size to 500, what we are doing, we are wasting 450 spaces over here and 430 over here, then 455 here and 355 here. Okay, so we are wasting this much of the memory. Say one more list come which contain 450 student, so we are wasting 50 spaces. Okay, here the memory on this last list, the memory wastage is small, so we can consider this, but for all other lists the memory wastage is high. So how to solve this problem, where we can find an optimum solution, where we can find an optimum solution? For that particular thing, what you can do, you can create a resizable array. Okay, there's nothing called resizable array. ऐसी कोई चीज नहीं होती है resizable array. हम क्या करते हैं, जब भी हमारी array fill हो जाती है, हम एक नई array बनाते हैं जो existing array है उससे ज़्यादा साइज की, और फिर क्या करते हैं, एग्जिस्टिंग एरे के एलिमेंट उस नई एरे में डालते हैं, और फिर जो रेफरेंस उस एग्जिस्टिंग एरे को पॉइंट कर रहा है, उसका रेफरेंस को हम चेंज कर देते हैं न्यू एरे पे. कैसे करेंगे ये देखिए. So what we are going to do, we are creating a new array. Then what we are doing, copying elements from old array to new array. And the third thing what we are doing, changing the reference. So here you can look into this thing कि आपकी एक ARR थी जो कि इनिशियली होल्ड करती थी तीन एलिमेंट को. ओके, आपने तीन एलिमेंट इंसर्ट करा दिए इस एरे के अंदर. नाउ अ फोर्थ एलिमेंट केम दैट इज 10. इसको इसमें इंसर्ट कराने के लिए जगह नहीं है हमारे पास. सो व्हाट विल डू, वी विल क्रिएट अ न्यू एरे, कॉपी द एग्जिस्टिंग एलिमेंट, न्यू एरेमेंट एरे ऑफ विथ लार्जर साइज. यहाँ पे तीन इसका साइज था, यहाँ हमने 5 कर लिया इसका साइज. एंड नाउ व्हाट वी आर डूइंग, वी आर कॉपिंग दिस एलिमेंट, इंसर्टिंग दिस एलिमेंट 10. नाउ
We have ARR and BRR. Now ARR is our original array. So what we'll do, ARR is pointing to this. We ask ARR to point to this new memory location. In this way, we can create. Now a code. Now code for this should look like int ARR equals to new int 3. Then we have some insert data code to copy this data to insert this data 268 in the ARR. Now we want to create a new array BRR new int. Now the size of BRR can be anything, but what will keep ARR dot length multiplied by 2, 2 times the size of the existing array, 2 times the size of the existing array. Why we are keeping it 2 times? Because at most we are wasting 50% of the array, at most we are wasting 50% of the array. Okay, so now what we'll do, कॉपी कैसे करेंगे भैया? कॉपी कॉपी करने का तरीका सिंपल है, एक फॉर लूप के अंदर बी आर आर आई इक्वल्स टू ए आर आर आई कर देंगे तो सारे एलिमेंट कॉपी हो जाएंगे, सारे एलिमेंट कॉपी हो जाएंगे एंड दैट फॉर लूप विल स्टॉप with the length of ARR. The for loop will stop with the length of ARR. अब ARR की लेंथ पे स्टॉप हो गया. नाउ द लास्ट थिंग दैट इज ARR शुड बी पॉइंटिंग टू द लोकेशन पॉइंटेड बाय BRR. तो हमने क्या कर दिया, रेफरेंस को चेंज कर दिया, रेफरेंस को चेंज कर दिया. In this way what we can achieve, in this way what we can achieve the optimal memory. सो एक तो हमने प्रॉब्लम सॉल्व कर ली कि अगर लिस्ट में वेरिंग नंबर ऑफ कैंडिडेट हैं तो हम इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं. जो दूसरी प्रॉब्लम हमारे पास आती है, जो दूसरी प्रॉब्लम हमारे पास आती है वो है द सेकंड प्रॉब्लम. इफ यू वांट टू रिमूव सम डेटा, इफ यू वांट टू रिमूव सम एलिमेंट फ्रॉम द एरे, आपकी एरे बन गई थी 2 6 8 10. ओके, नाउ यू वांट टू रिमूव दिस 6, यू वांट टू रिमूव दिस 6. सो एरे से किसी भी एलिमेंट को रिमूव करने का मतलब है कि उसको वहां से हटा देना. चलें उसे हटाएंगे तो क्या हम ब्लैंक छोड़ सकते हैं? इस लोकेशन को हम ब्लैंक छोड़ सकते हैं क्या? कैन वी? नो, वी कैन नॉट, वी कैन नॉट लीव दिस पर्टिकुलर थिंग ब्लैंक. सो वी हैव टू डू समथिंग. मैं ऐसा नहीं छोड़ सकता इसको 8 10. इस जगह पे कोई ना कोई वैल्यू तो रहेगी, कोई ना कोई वैल्यू तो रहेगी. ओके, तो मैं क्या करूँ? सो दैट मीन्स दैट आई हैव टू शिफ्ट दिस वैल्यूज. ठीक है, तब भी एक एम्प्टी स्पेस मेरे पास रहने वाला है, एक एम्प्टी स्पेस रहने वाला है. 2 8 10 दिस वुड बी दी माई एरे एंड दिस वुड बी दी एम्प्टी स्पेस. अब यहाँ क्या वैल्यू रखें हम? यहाँ हम क्या वैल्यू रखें? यहाँ हम कोई भी वैल्यू रख दें, हमें फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि वी आर नॉट गोइंग टू एक्सेस दिस पर्टिकुलर इंडेक्स, वी आर नॉट गोइंग टू एक्सेस दिस पर्टिकुलर इंडेक्स. Because when I print this particular array without removing anything, I will get the output like this. When I print this, I will get the output like this. So I am not concerned about this particular index, I am not consider about this particular index. But how to achieve this? To achieve this, we have to keep a track of number of elements in the list, number of elements in the list. की element कितने element हैं array के अंदर, we have to keep track of that particular thing to process the data correctly. अब देखिए, ऑल दिस आर दी ओवरहेड. शिफ्टिंग करना भी एक ओवरहेड है रिमूव करने के टाइम पे, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स को भी मेंटेन करना. व्हाट जावा सजेस्ट यू दैट वी हैव एन एग्जिस्टिंग लाइब्रेरी जिसको हम कलेक्शन फ्रेमवर्क बोलते हैं. यू कैन यूज दैट लाइब्रेरी, यू कैन यूज दैट लाइब्रेरी एंड परफॉर्म योर टास्क. तो आपके प्रोजेक्ट की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी, आपके प्रोजेक्ट की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी. हाउ? You do not have to worry about all these things. You do not have to worry about all these things. You can use the predefined functions that are there. You can use the predefined class that are there, and they will act as per your need. They will act as per your need, and anything, any abstract behavior you want to supply, then you can also supply any abstract behavior. There are many abstract behavior that are declared in that library. You can define those abstract behavior and achieve your logic, achieve your achieve your implementation. Okay, so that is the thing they have provided. Now we'll start कि collection होता क्या है. What is a collection? A collection, as its name implied, is simply an object
that holds a collection of ऑब्जेक्ट्स। ओके, एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो दूसरे ऑब्जेक्ट्स को होल्ड करता है, जो दूसरे कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट को क्या करता है, होल्ड करता है। कलेक्शन को आप ये भी बोल सकते हैं ग्रुप ऑफ एलिमेंट, और ये भी बोल सकते हैं कंटेनर टू कीप ऑब्जेक्ट, अ कंटेनर टू कीप ऑब्जेक्ट्स। but it will only work on objects, it will only work on object. For primitive you have to use the wrapper classes, you have to use the wrapper classes. Now each item in a collection is called an element, each item in collection is called an element. Okay beta, now moving forward, what is framework, what is framework? So a framework by definition is a set of interfaces that forces you to adopt some design practices, okay, that forces you to adopt some design practices. सो भैया ये क्या, इसका मतलब क्या होगा, हाउ वी कैन रिलेट? तो हम एक जनरल एग्जांपल समझने की कोशिश करते हैं। आई होप सम ऑफ यू हैव हर्ड अबाउट दिस पर्टिकुलर थिंग, सम ऑफ यू हैव हर्ड अबाउट दिस पर्टिकुलर थिंग कॉल्ड BS6। कितने लोगों ने सुना है भैया ये? सर क्या? रिपीट कर दिए। हाउ मेनी ऑफ यू अवेयर अबाउट BS6 जो मैंने स्क्रीन पे लिखा है, कितने लोगों ने सुना है ये? ये सॉफ्टवेयर से रिलेटेड नहीं है, ऑटोमोबाइल से रिलेटेड है। यस सर, सुना है। सर सुना है, सर यस सुना सर, है। BS4 BS। हाँ जी, BS4 BS4। BS3 और BS6। हाँ भैया, अभी आया है अपडेट BS6, BS4 इससे पहले से था, भारत स्टेट है ना? एमिशन। हाँ जी, भारत स्टेट एमिशन कंट्रोल नॉर्म 6th एडिशन, उसमें बहुत सारी चीज़ें उन्होंने नई ऐड कर दी है। अब देखो BS6 में उनने क्या बनाए हैं, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन। ठीक है भैया, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन, दैट इज द सेट ऑफ इंटरफेसेस। ओके, दैट इज द सेट ऑफ इंटरफेसेस। ये रूल्स और रेगुलेशन बताते हैं कि कार में क्या क्या चीजें आप लगा सकते हो, उसके इमिशन कंट्रोल क्या होंगे। जैसे आपने आजकल देखा होगा कार और टू व्हीलर में हेडलैम्प ऑन रहते हैं, देखा है आप लोगों ने? कार में हेडलैम्प यस ऑन सर, रहेंगे यस तो सर। बैटरी कंजम्पशन बढ़ जाता है ना। लेकिन उन्होंने एक वो लाइट दे दी है, हेडलाइट के ऊपर एक लाइट दे दी है जो हमेशा जलती रहती है। सो दैट इज द रूल एवरी मैन्युफैक्चरर हैज टू फॉलो। अगर BS6 बोला है अपनी गाड़ी को तो फॉलो करना है, और BS6 नहीं है गाड़ी तो इंडिया में रजिस्टर नहीं होगी। 2018, ओके 2018 19 2019 में ये नॉर्म आ गया था भैया ना, 2019 में ये नॉर्म आ गया था, और उसके बाद से सारी गाड़ी BS6 कॉम्प्लिएंट है। एज वेल एज टू व्हीलर के लिए भी BS6 का नॉर्म आ चुका है कि भैया टू व्हीलर भी BS6 ही वाले RTO रजिस्टर करेगा, उससे पुराने ना डीलर सेल कर सकता है, कंपनी को मॉडिफाई करने ही पड़ेंगे। तो टू व्हीलर में भी आपने देखा होगा कि हेडलैम्प ऑन रहते हैं। ओके, तो भैया ये क्या थे, रूल्स एंड रेगुलेशन, जो फॉलो करेगा उसकी गाड़ी BS6 है। सो फ्रेमवर्क है, ये क्या हो गया हमारे लिए, फ्रेमवर्क। इनने एक रूल दे दिया हमको, रूल्स एंड रेगुलेशन दे दिया, दैट इज वी आर कंसीडरिंग एज एन डिजाइन प्रैक्टिस, वी आर कंसीडरिंग एज एन ऑटोमोबाइल डिजाइन प्रैक्टिस। उन्होंने बता दिया, अब हमें क्या करना है, BS6 को अडॉप्ट करना है, तो उसमें लिखी हुई सारी चीजों को हमको क्या करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा। अब किसी ने थोड़ी बोला था कि हेडलाइट के ऊपर एक लाइट दे दो, BS6 ने ये नहीं बताया था, BS6 ने बोला था हेडलैम्प्स विल बी ऑन। उसके उनका रीजन था कि भैया हिली टेरेन पे कोई एक्सीडेंट हो जाता है रात में, तो हेडलैम्प क्या होंगे, ऑन रहेंगे, तो ढूंढने में आसानी हो जाएगी, ढूंढने में आसानी हो जाएगी। सो इस कारण से उन्होंने हेडलैम्प ऑन करने के लिए। इसके साथ एक और चीज आपने देखी होगी, नया एडिशन है ये, ट्यूबलेस टायर्स आने लगे हैं ना। ट्यूबलेस टायर के साथ क्या फायदा है, सभी को मालूम है कि भैया की हील गड़ भी गई तो पंचर नहीं होगा, है ना? आप पंचर वाले तक पहुंच सकते हो, पता ही नहीं चलता ट्यूबलेस पंचर हुआ है कि नहीं, वो तो हवा कम होने लगे तो उसका चेक करा लो, है ये सारी चीजें होती है ना। इससे पहले आता था बेटा, इससे पहले आता था ट्यूब्ड टायर आता था ना। यस सर। तो जब ये ट्यूब्ड टायर रिटायर होता था ना, जब ये ट्यूब्ड टायर रिटायर होता था, तो ट्यूब भी वेस्ट हो जाता था, टायर भी वेस्ट हो जाता था। देखो टायर तो खराब हो गया, ट्यूब भी हो सकता है खराब हो जाए, लेकिन दोनों जब रिटायर होते थे तो नया पेयर लोगे तो ट्यूब और टायर दोनों ही आएगा। तो ट्यूब का रबड़ भी वेस्ट, टायर का रबड़ भी वेस्ट, और दीज
प्रोडक्ट आर नॉट गोइंग टू नेचुरली डिकम्पोज ना, नेचुरली ये डिकम्पोज होंगे नहीं, तो इसका रीयूज क्या करें, इसकी रिसाइकलिंग, तो वेस्टेज हाई हो जाता। जब वेस्टेज हाई हो जाता तो क्या किया उन्होंने, उन्होंने बोला कि चलो गाड़ियों में टायर तो लगाने पड़ेंगे, कम से कम ट्यूब तो हटा दें। सो ये दैट ट्यूबलेस इज ऑल्सो नॉर्म इन BS6, ट्यूबलेस इज ऑल्सो नॉर्म इन BS6, BS4 में भी था, BS4 में भी था। दैट टाइम इट्स ऑप्शनल, दैट टाइम इज ऑप्शनल, अब कंपल्सन है कि ट्यूबलेस ही होना चाहिए। ओके, तो ऑल दिस प्रैक्टिसेस आर दी डिजाइन प्रैक्टिस दैट हाउ टू डिजाइन एन ऑटोमोबाइल। हमें कोई दिक्कत नहीं, आप कैसे भी डिजाइन करो, ये रूल्स फॉलो कर लेना, ट्यूब नहीं चाहिए मतलब नहीं चाहिए, अब आप उसमें पूरी रबड़ का टायर लगा दो बिना हवा वाला, हमें उससे भी कोई दिक्कत नहीं है। ओके, दैट इज द कॉस्ट यू हैव टू बियर, तो आपको वो काम करना पड़ेगा। इमिशन कंट्रोल्स के भी नॉर्म है कि भैया पॉल्यूशन नहीं बढ़ानी चाहिए आपकी गाड़ी से। सो ऑल दिस थिंग्स आर द डिजाइन प्रैक्टिस, बाय यूजिंग दोस रूल्स एंड रेगुलेशन यू हैव टू डिजाइन द इंजन। सेम कम्स विद सॉफ्टवेयर, सेम कम्स विद सॉफ्टवेयर। अ फ्रेमवर्क is a set of interface that forces you to adopt some design practice। जैसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एक डिजाइन प्रैक्टिस है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में बोलते हैं कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फीचर्स को यूज करके ही आपको डिजाइन करना है सॉफ्टवेयर, देन दैट सॉफ्टवेयर विल बी efficient and easy to maintenance। The same thing comes with framework, if the framework is a well designed framework, if the framework is a well designed framework can improve your productivity and provide ease of maintenance। आपकी जो डेवलपमेंट की प्रोडक्टिविटी है वो क्या हो जाएगी भैया, वो इम्प्रूव हो जाएगी, और इम्प्रूव होने के कारण क्या होगा, यू कैन डिलीवर द प्रोडक्ट फास्टर एज वेल एज दैट प्रोडक्ट इज इजी टू मेंटेन दैट प्रोजेक्ट इज इजी टू मेंटेन। तो भैया एक चीज हमने समझी कलेक्शन, दूसरी चीज हमने समझी फ्रेमवर्क, लेकिन जावा सप्लाई करता है आपको कलेक्शन फ्रेमवर्क, तो उसको भी देख लेते हैं भैया। What is a collection framework? A group of interfaces and classes which defines abstract or general behavior of all the collection implementation। मतलब कलेक्शन टाइप की जितनी भी क्लासेस होंगी उनके लिए कुछ जनरल बिहेवियर और एब्स्ट्रैक्ट बिहेवियर डिफाइन कर दिए गए हैं। ओके, that all the classes should follow those behavior, all the classes should follow those behavior। तो बिहेवियर क्या जो जनरल डिफाइन किए गए हैं वो है ऐड, रिमूव। हम इन दो की बात कर लेते हैं अभी। कंसीडर ए केस कि आपके पास एक टॉयस कंटेनर है, एक बॉक्स है जिसमें आप टॉय स्टोर करते हो, और एक सेटल बॉक्स है। कितने लोग बैडमिंटन खेलते हैं यहाँ पे, बहुत सारे लोग खेलते होंगे शायद। यस सर। तो यस ये सर। पहले हम सेटल बॉक्स की बात करते हैं ना, ठीक है, सेटल बॉक्स की बात कर लेते हैं कि उसमें सेटल्स अरेंज होती है, मैं नंबर डाल रहा हूँ, ठीक है, ये छह छोटा वाला 6 सेटल्स का बॉक्स है हमारे पास। आपने हमेशा देखा होगा कि सेटल्स अरेंज होती हैं। इफ आई वांट टू पिक दिस लास्ट वन, अगर मुझे लास्ट वन लेनी है तो मुझे ये सारी को क्या करना पड़ेगा, एग्जिट कराना पड़ेगा, इन सारी को क्या कराना पड़ेगा, एग्जिट, देन ओनली आई एम एबल टू पिक दिस वन। फर्स्ट थिंग, अगर आपको रिमूव करना है तो इस एंड से होगा, और आपको ऐड करना है तो इस एंड से होगा। सेटल कॉक में ये होता है ना, सेटल कॉक के यस सर। बॉक्सेस में ये चीज होती है। ठीक, नाउ देखो इसमें भी ऐड और रिमूव कर सकते हो, लेकिन इसका अपना एब्स्ट्रैक्ट, इसका अपना स्पेसिफिक बिहेवियर है, इसका अपना स्पेसिफिक बिहेवियर है कि भैया एडिंग फ्रॉम वन एंड एंड रिमूविंग फ्रॉम अदर, एडिंग फ्रॉम वन एंड एंड रिमूविंग फ्रॉम अदर। दूसरा हम सिनारियो इसी में समझते हैं कि आई वांट टू प्ले विद द फर्स्ट, ओके, आई वांट टू प्ले विद द फर्स्ट सेटल, देन आई वांट टू replay it replay with it when till the time it's not गोइंग टू डैमेज, जब तक वो खराब नहीं हो रही है जब तक मैं इसी से खेलूंगा। तो मैंने पहले दिन खेला, सेटल बाहर आ गई थी बॉक्स से, अब मुझे उसको वापस लाना है कि अगले दिन वो मुझे फर्स्ट पोजीशन पे ही मिले। तो ये अरेंजमेंट तो मेरे लिए सुटेबल नहीं है कि मैं वापस उसको ऐड कर दूं। आई नाउ आई हैव एन एक्सेस टू टू, इंस्टेड ऑफ डूइंग सो मैं 2 3 4 5 6 को एग्जिट करा दूं बॉक्स से, 2 3 4 5 6 को एग्जिट करा दूं, और वन को सबसे पहले रखूं, फिर 2 3 4 5 6 को एडजस्ट कर दूं, ओके, इंसर्ट करा दूं। तो क्या होगा, नाउ अगेन द नेक्स्ट डे आई विल एक्सेस दिस फर्स्ट सेटल। ओके योगेश, यस, यस यस सर। है ना, आपके सवाल का जवाब यस है, आई एम कीपिंग इट टू यू एंड मी ओनली, है ना, ठीक है, वो डेटा स्ट्रक्चर से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है, ठीक है, ठीक है, चलें। ओके। तो भैया व्हाट आई एम डूइंग अब मैं फिर से फर्स्ट को एक्सेस कर पाऊंगा,
ओके, डन। तो ये तो हो गया भैया हमारा इस पर्टिकुलर सेटअप बॉक्स। ऐड और रिमूव कर सकता है। अब ये टॉय कंटेनर देखो, अब ये टॉय कंटेनर देखो, है ना। टॉय कंटेनर मतलब एक पुस्ते का बॉक्स समझ लें या प्लास्टिक, मैंने सारे टॉयज इंसर्ट करा दिए भैया, है ना, सारे टॉयज ऐड कर दिए हैं। ठीक, पहली चीज, जब सेटल में मैं एंटर करता था, वन सबसे पहले एंटर हुई थी, इसलिए सबसे पहले एक्सेसिबल होगी, टू उसके बाद। तो ये इंसर्शन ऑर्डर को मेंटेन करके रखा हुआ है भैया, इसने इंसर्शन ऑर्डर को मेंटेन करके रखा है। लेकिन जब इस टॉय के डब्बे में मैं टॉयज को डालना चालू करूंगा, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ, नौ टॉयज मैंने इसमें प्लेस कर दिए हैं। नाउ आई वांट टू पिक दैट टॉय जो सबसे पहले मैंने डाला था। थोड़ी सी तकलीफ होगी, थोड़ी सी तकलीफ, मुझे उसको ढूंढना पड़ेगा कंटेनर के अंदर। और हो सकता है वो मुझे ना दिखे जब तक मैं दूसरे टॉयज को रिमूव ना करूं, जब तक मैं दूसरे टॉयज को रिमूव ना करूं। तो देखो, ये ऐड और रिमूव एक ही एंड से दे रहा है, ये तो इस बॉक्स की स्पेसिफिक बिहेवियर हो गया। ये ऐड और रिमूव डिफरेंट एंड से दे रहा था, ये इस बॉक्स का बिहेवियर हो गया। सो गाइस, बिहेवियर क्या है, ऐड और रिमूव। अब वो क्या चीज है, वो आप अपने स्पेसिफिक कलेक्शन के हिसाब से भी लिख सकते हैं, लेकिन ऐड और रिमूव की परमिशन आपको देनी पड़ेगी, ऐड और रिमूव की फीचर्स आपको देना पड़ेगा। तो फ्रेमवर्क हमको ये सजेस्ट कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। सेकंड चीज, मैंने यहाँ पे सेटल बॉक्स में 6 एलिमेंट डाले थे, यहाँ मैंने 9 एलिमेंट डाले हैं। तो एक और गारंटी है कि ये 9 के 9 में एक्सेस कर सकता हूँ वन बाय वन, किसी भी ऑर्डर में, यहाँ से किसी भी ऑर्डर में बाहर आए मुझे कोई फर्क नहीं है। और यहाँ पे स्पेसिफिक ऑर्डर में ही आएंगे, मुझे ये मालूम है, ठीक है। लेकिन 6 के 6 एलिमेंट में एक्सेस कर सकता हूँ। यहाँ पे टॉय वाले एग्जाम्पल में मैं 9 के, तो दैट इज द थिंग कि आपने जितने एलिमेंट ऐड किए हैं सबको एक्सेस कर सकते हो। कुछ कलेक्शन आपको बोलेंगे कि आप ऑर्डर्ड तरीके से कर लोगे, कुछ बोलेंगे अनऑर्डर्ड तरीके से, कि आप बस, आपको सारे एलिमेंट मिल जाएंगे लेकिन ना वो उनका अराइवर ऑर्डर मेंटेन होगा ना कोई और ऑर्डर मेंटेन होगा। ओके, तो ये जो रूल्स हैं कलेक्शन के, जो बिहेवियर हैं, ये कलेक्शन सारे टाइप के कलेक्शन फॉलो करते हैं। देखिए, जनरली क्या होता है, ऐड, रिमूव, सर्च, सॉर्ट, ओके, ये 4 फीचर्स हर कलेक्शन के पास होते हैं। सॉर्ट मतलब अरेंजिंग, सर्च मतलब फाइंडिंग, ऐड मतलब एडिंग ए न्यू एलिमेंट, रिमूव मतलब रिमूविंग एन एग्जिस्टिंग एलिमेंट। ओके, चलें, तो कलेक्शन के अंदर जो भी इंटरफेसेस हमारे पास हैं उनकी बात कर लेते हैं। ऑल द इंटरफेसेस दैट वी हैव इन कलेक्शन, framework. So the first interface we are going to look into is the collection interface. Then comes the SAT, then comes sorted SAT, then comes list. Map and sorted map are not part of collection framework, but they are that much similar. They are much similar to the collection. They have the same method that the collection implementation have or the collection framework classes have. So that's why they are also considered similar to collection, but they are not part of collection framework. मतलब collection की hierarchy का part नहीं है, but they are similar to the collection. इनके पास भी add, remove, search, sort सारे features है भैया, है ना, ठीक है। Then comes iterator, then comes list iterator, then comes queue. क्यू, अभी हमने एक एग्जांपल देखा था सेटल बॉक्स का, वो क्यू है, वो क्या है, वो क्यू है, ठीक है। अब हम हमारे सिलेबस में क्या पढ़ने वाले हैं, हमारे इस कलेक्शन के सिलेबस में हम किन पे स्ट्रेस करने वाले हैं। पहले तो हम यहाँ पे देखेंगे, सेट पे स्ट्रेस करेंगे बेटा, लिस्ट पे स्ट्रेस करेंगे, एंड मैप पे स्ट्रेस करेंगे। हम 3 चीज़ों पे स्ट्रेस करेंगे, इनके कॉन्क्रीट इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे, एज वेल एज सेट कलेक्शन से ड्रिवन है, लिस्ट कलेक्शन से ड्रिवन है। तो हमको क्या देखना है, कलेक्शन के मेथड्स को भी हम एक्सप्लोर करेंगे। तो इंटरफेस में कलेक्शन इंटरफेस भी हम चेक करने वाले हैं। वी आर गोइंग टू चेक द कलेक्शन इंटरफेस। इटीरेटर हम चेक करने वाले हैं, इटीरेटर वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट। एंड लिस्ट इटीरेटर वर्क्स विथ लिस्ट, तो वी आर गोइंग टू, then we are going to see the list iterator also. Okay, so we are going to discuss set, list iterator and collection. Okay, this rest of the thing you can explore by yourself, rest of the thing you can explore by yourself. Map is also we are going to discuss. Okay, चलें, तो इंटरफेसेस के बारे में बेसिक बात कर लेते हैं। जो पहला इंटरफेस मिलेगा वो है कलेक्शन इंटरफेस। दैट इंटरफेस इज द रूट इंटरफेस फॉर ऑल द कलेक्शन इम्प्लीमेंटेशन।
all the collection implementation are derived from this interface, okay। ये क्या मेथड प्रोवाइड करता है भैया, ऐड, रिमूव, साइज, इटरेटर और बहुत से मेथड प्रोवाइड करता है, सर्च, सॉर्ट, these methods are there। ये सारे मेथड्स पहले से ही उसने क्या करके रखे हैं, डिक्लेयर करके रखे हैं। इफ यू वांट टू क्रिएट योर कस्टम कलेक्शन, तो अब आप क्या करेंगे, कलेक्शन को एक्सटेंड कर लेंगे, इम्प्लीमेंट कर लेंगे और उसके मेथड्स को यूज कर लेंगे, उसके मेथड को क्या करेंगे, यू डिफाइन करके यूज कर लेंगे। सो ऑल दीस आर द एब्स्ट्रैक्ट बिहेवियर दैट आर डिफाइंड ओवर देयर, डिक्लेयर्ड ओवर देयर। सो नाउ कम्स सेट इंटरफेस। सेट इंटरफेस आता है भैया हमारे पास। सेट क्या करेगा भैया, कलेक्शन वेयर नो डुप्लीकेट एलिमेंट कैन बी प्रेजेंट एंड हुज एलिमेंट्स आर नॉट नेसेसरी स्टोर्ड इन एनी पर्टिकुलर ऑर्डर। मतलब व्हेन यू वांट टू डील विथ यूनिक वैल्यू यू विल यूज सेट, ओके। सेट भी इंटरफेस है, तो सेट का कोई ना कोई कॉन्क्रीट इम्प्लीमेंटेशन हम उठाएंगे और उसको हम यूज कर लेंगे। ये क्या देता है आपको, गारंटी अगेंस्ट डुप्लीकेसी, कि डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट्स आ ही नहीं सकते, वन थिंग। सेकेंड, the element of this particular collection are not ordered। not ordered मतलब कोई भी ऑर्डर मेंटेन नहीं होगा, ना ही इंसर्शन ऑर्डर, ना ही कोई इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर, कुछ भी मेंटेन नहीं होगा। दैट्स व्हाई दिस कलेक्शन इज कॉल्ड अनऑर्डर्ड। ठीक है भैया, ऑर्डर्ड वे में तो आपको चीजें नहीं मिलेंगी, सारी चीजें मिल जाएंगी, इसकी गारंटी है। यू विल फाइंड ऑल द एलिमेंट, दैट इज गारंटीड, बट नॉट इन एनी पर्टिकुलर ऑर्डर, ऑलवेज इन द रैंडम वे, ओके। The second feature is this contains unique object, means duplicacy. You do not have to worry about duplicacy. That particular implementation will take care of it. And the third is extends collection interface। सेट भी इंटरफेस है, इसलिए वो कलेक्शन को क्या करता है, एक्सटेंड करता है भैया। अब कलेक्शन की बात कर लेते हैं। कलेक्शन क्या है यहाँ पे, ये क्या है भैया, कलेक्शन बेस हो गया और इससे डिराइव्ड क्या मिल गया हमको, सेट मिल गया। इससे डिराइव्ड हमको क्या मिल गया, सेट। सेट के बाद हमें मिलता है एक सॉर्टेड सेट। क्या मिलता है भैया, सॉर्टेड सेट। जैसा कि इसका नेम सजेस्ट करता है, दिस सेट अ सेट हुज एलिमेंट्स आर अरेंज इन सॉर्टेड ऑर्डर। किसी ना किसी सॉर्टेड ऑर्डर में अरेंज होंगे। दैट ऑर्डर यू हैव टू प्रोवाइड, आपको देना पड़ेगा भैया ये ऑर्डर, की किस ऑर्डर में अरेंज कराना है। जिनकी नेचुरल ऑर्डरिंग होती है अल्फाबेट्स और नंबर्स, उनका नेचुरल ऑर्डर मेंटेन कर लेता है। फॉर रेस्ट ऑफ द थिंग यू हैव टू डिफाइन द ऑर्डरिंग, सो इट एक्सटेंड्स द सेट इंटरफेस। मतलब कलेक्शन से हमारे पास आया सेट, और सेट से हमारे पास क्या आया, सॉर्टेड सेट, ओके। अब देखिए, सॉर्टेड सेट के पास सेट और कलेक्शन दोनों की प्रॉपर्टी है, सेट और कलेक्शन दोनों की प्रॉपर्टी है, ओके। सो इन दिस वे the sorted set is having the property of collection as well as set। so collection is the indirect parent of sorted set, means direct parent तो है नहीं, indirect in a sense grand parent of the sorted set। चलें, then comes a list। फिर हमारे पास क्या आती है भैया, लिस्ट आती है ना। अब लिस्ट में क्या होगा हमारे पास, ये ऑर्डर्ड तरीके से रहेंगे इसके एलिमेंट, ओके। अ कलेक्शन हुज एलिमेंट्स स्टे इन particular order unless the list is modified, सी 1 2 3 4 5 6। देखिए ये ऑर्डर है, ठीक है। इस पर्टिकुलर ऑर्डर में इंसर्शन ऑर्डर 1 सबसे पहले आया था, 2 3 4 5 6। अब अगर मैं लिस्ट को मॉडिफाई कर दूं तो ये ऑर्डर चेंज होगा, नहीं तो ये ऑर्डर चेंज नहीं होगा, ओके। तो लिस्ट के एलिमेंट हमेशा ऑर्डर्ड रहते हैं। तुम इस लिस्ट को प्रिंट करोगे तो तुमको आउटपुट मिलेगा 1 2 3 4 5 6, और इसको करोगे तो 2 3 4 5 6 1, ओके। तो जिस ऑर्डर में वो इंसर्टेड है उस ऑर्डर में वो आपको दिख जाएंगे। लिस्ट डुप्लीकेट एलिमेंट को कंटेन करती है भैया, ओके।
यस योगेश, चले भैया, है ना। डुप्लीकेट एलिमेंट हो सकते हैं जब आपको ऐसी कोई लिस्ट बनानी है जहां आप डुप्लीकेट की चिंता नहीं करते हैं, तो आप लिस्ट यूज कर लीजिएगा। थर्ड है एक्सटेंड्स कलेक्शन इंटरफेस, मतलब अब हमारे पास क्या क्या आ गया कलेक्शन से, हमारे पास एक तो आ गया सेट, दूसरा आ गया हमारे पास लिस्ट। दो इंटरफेस कलेक्शन से ड्रिवन है, और सेट से हमारे पास पहले से क्या बैठा हुआ है, सॉर्टेड सेट। ओके भैया, तो ये होगा इंटरफेसेस जो एक दूसरे से कलेक्शन से ड्रिवन है। ओके, नाउ मैप, कि भैया मैप क्या होता है। मैप इज नॉट अ पार्ट ऑफ कलेक्शन, वेरी फर्स्ट थिंग। A map form key to at most one value each। मैप क्या होता है भैया, मैप इज अ की वैल्यू पेयर, जो हर एक वैल्यू के अगेंस्ट में की रखता है, हर एक वैल्यू के अगेंस्ट में की रखता है। मैप इज नॉट, डज नॉट एक्सटेंड कलेक्शन, क्योंकि वो कलेक्शन फ्रेमवर्क का पार्ट नहीं है। बट मैप ऑल्सो कंटेन द सेम सेट ऑफ मेथड्स एज कलेक्शन। जैसा कलेक्शन के पास मेथड्स है, वैसे ही मेथड्स क्या करता है, वो कीप करता है। सो इट कैन बी व्यूड एट कलेक्शन, उसको कलेक्शन जैसा समझ सकते हैं, पर वो कलेक्शन फ्रेमवर्क का क्या है, पार्ट नहीं है। ओके, देन कम सॉर्टेड मैप। जैसे सॉर्टेड सेट में ऑर्डर्ड आ जाता था, यहाँ पे भी क्या हो जाएंगे भैया, ऑर्डर्ड हो जाएंगे। किस पे, ऑन द बेसिस ऑफ की। मैप हुज कीज आर सॉर्टेड, ऐसा मैप जिसकी कीज क्या है भैया, सॉर्टेड है। एंड दिस एक्सटेंड्स मैप, दिस एक्सटेंड्स मैप इंटरफेस, तो ये आपका मैप इंटरफेस है। इससे ड्रिवन हमने क्या बनाया है, सॉर्टेड मैप। और इनके टॉप पे कलेक्शन नहीं है, इनके टॉप पे कलेक्शन नहीं है, इनके टॉप पे कलेक्शन नहीं है। ओके, सो ये हो गया हमारा सॉर्टेड मैप। then comes iterator. Okay, so guys, from iterator we will start in the next lecture, and in that lecture we are going to see the implementation of list interface. Okay, list interface collection के method देखेंगे, list interface भी देखेंगे, ठीक है। So we'll start our next lecture from this particular slide. Okay, so yeah, that's all for today, we'll see you in the next lecture. Thank you class. Thank you, sir.